कि आज के दिन में सबसे कॉमन ब्लड कैंसर्स और डिसऑर्डर्स कौन से हैं? ब्लड कैंसर का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे 250 बीमारियां हैं जो ब्लड कैंसर में होती हैं। जीनोमिक्स क्या है? हेल्थ केयर में इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ रही है? अब जीनोमिक्स है कि हम कोई भी बीमारी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रहा? ब्लड कैंसर इज नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस। बच्चों में सबसे कॉमन ब्लड के डिजीज कौन से है? तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है। बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होने का मोस्ट कॉमन कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कौन सी वार्निंग साइंस है जिन्हें लोगों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? कुछ नहीं, अपने शरीर को सुनना जरूरी है। जीनोमिक्स टेस्ट ये डायग्नोस्टिक्स को इतना एक्यूरेट कैसे बना रहा है? आप में और मुझ में 99% सेम डीएनए है। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज ओनली 1%। एडल्ट्स और बच्चों में क्या फर्क रहता है ट्रीटमेंट के पहले भी और ट्रीटमेंट में भी? देखिए, बच्चों के जो ब्लड कैंसर हमने बात करी उसमें एक जो सबसे कॉमन कैंसर है उसका नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके बारे में बहुत चर्चा होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक हथियार है जिसको सही समय पे चलाना होता है। রক্তের ক্যান্সার কিংবা বিভিন্ন রক্তের জটিল রোগের চিকিৎসা গত এক দশকে আমূল বদলে গিয়েছে। একসময় যে রোগগুলোকে সাক্ষাৎ মৃত্যু বলে মনে করা হতো সেই রোগের চিকিৎসায় বর্তমানে এসেছে যুগান্তকারী কিছু পরিবর্তন। বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, ইমিউনোথেরাপি, কার্টিসেল থেরাপি, জেনোমিক্স এবং পার্সোনালাইজড মেডিসিন, এই প্রযুক্তিগুলো শুধু চিকিৎসাকেই বদলে দিচ্ছে না, বদলে দিচ্ছে রোগীদের ভবিষ্যৎও। কিন্তু তাও সাধারণ মানুষের মনে আজ বহু প্রশ্ন রয়ে গেছে। যেমন ধরুন, রক্তের ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণগুলো কি কি? একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষাতেই কি রক্তের ক্যান্সার নির্ণয় করা সম্ভব? শিশুদের রক্তের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বা শিশুদের রক্তের রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি কতটা আলাদা? জিনোমিক্স এবং পার্সোনালাইজড মেডিসিন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কিভাবে আরও আধুনিক এবং উন্নত করে তুলেছে এবং আগামী দিনে ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা ঠিক কেমন হতে চলেছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের এই বিশেষ পর্বে আমরা আলোচনা করব। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক যারা রক্তের ক্যান্সার, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট কিংবা আধুনিক জিনভিত্তিক চিকিৎসার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত রয়েছেন। সুদূর হরিয়ানা থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছেন ফর্টিস হসপিটাল গুরগাঁওয়ের 3 বিশিষ্ট চিকিৎসক। আসুন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর রাহুল ভার্গব, প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর এন্ড চিফ হেমাটোলজি, হেমাটো-অঙ্কোলজি অ্যান্ড বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। স্যার, ওয়েলকাম আপকো। थैंक यू। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর বিকাশ দুয়া, প্রিন্সিপাল ডিরেক্टर एंड हेड पेडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, हेमाटो-অঙ্কোলজি एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सर, स्वागत है आपका। एंड আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর শ্রীনিধি নাথানি, কনসালটেন্ট মলিকিউলার হেমাটোলজি एंड ऑन्कोलॉजी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जेनोमिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मैम, स्वागत है आपको हेल्थ इम्पैक्ट बांग्ला में। আমরা তিনজন চিকিৎসককে নিয়ে আজকের এই আলোচনা শুরু করব। আশা করি রক্তের ক্যান্সার এবং রক্তের রোগ সম্পর্কিত যা যা প্রশ্ন আপনাদের মনে আছে, যা যা সমস্যায় আপনারা ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে, যেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনারা খুঁজছেন, আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে আপনারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদের জন্য আলোচনা করছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আশা করি আজকের পর্বে যেগুলো আলোচনা হবে তাতে আপনারা উপকৃত হবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখবেন এবং শেয়ার করবেন। আসুন আজকের আলোচনা শুরু করি এবং আপনাদের সুবিধার্থে আমরা আজকের আলোচনাটি হিন্দিতে করছি যাতে স্যারদের उत्तर দিতে সুবিধা হয় এবং আপনারা বুঝতে পারেন। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सी वार्निंग साइंस है जिन्हें लोगों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सवाल है। कैसे आम आदमी को पता चले कि मुझे कोई बीमारी है? नॉर्मल आदमी को थकान होती है, नॉर्मल आदमी को बुखार आता है, गांठें आ सकती हैं, निरंतर रूप से रात में कभी कभार पसीना आ जाता है, लाइट चली जाती है, कभी कुछ होता है। तो आम आदमी कैसे पहचाने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, धूप दौड़ में, अपने अस्पताल, अपने ऑफिस के काम से, अपने घर के काम से कैसे वो पहचाने कि उसे परेशानी है दोस्तों? और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं, अपने शरीर को सुनना जरूरी है। अपने शरीर बताता है कि तुम्हें बीमार हो, पर आपको अपने कान खुले रखने हैं अपने शरीर की आवाज को सुनने के लिए। वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें हम जैसे ब्लड कैंसर के डॉक्टरों को आपको जरूरत पड़ सकती है मिलने की? जिसमें बुखार आ रहा हो निरंतर रूप से, 2 से 3 हफ्ते से निरंतर रूप से हल्का हल्का बुखार बन रहा हो। दूसरा,
आपको अत्यधिक थकान लग रही हो, वजन कम हो रहा हो, ये भी बहुत कॉमन है। और आज की तारीख में तो जेनजी जो है वो सारी वजन कम करने में लगी है। पर अगर आप जानबूझ के वजन नहीं कम कर रहे तो वजन कम होना एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ में कोई गांठें हों, मतलब शरीर में कई बार बहुत बार गांठें होती हैं, शेव करते हुए अपने को पता चलता है कि अपने को गांठें हो गई, वो गांठें भी कैंसर का लक्षण, जो एक लिम्फोमा होता है उसका लक्षण हो सकती है। इसके साथ में निरंतर रूप से पीठ में दर्द रहना, 50 साल के आदमी का किसी का पीठ में दर्द निरंतर रूप से बना जा रहा है, वो स्लिप डिस्क के अलावा भी कुछ हो सकता है। इस सदी में दोस्तों ये समझना जरूरी है, कोई भी सिम्टम या साइन या कोई भी परेशानी निरंतर रूप से बनी रहती है तो उसको जरूर डॉक्टर से, हीमेटोलॉजिस्ट से जरूर चर्चा करें कि क्या मुझे लिम्फोमा, माइलोमा तो नहीं है। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है मुखर्जी जी, कि किसी का, पुरुष है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। पुरुष में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होना चाहिए? वो अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा काम करता है, उसको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, उसका हीमोग्लोबिन कम क्यों होना चाहिए? तो आंतों की परेशानी हो सकती है। तो बहुत ही कॉमन बहरूपिया वाले लक्षण हैं ब्लड कैंसर के, जो हम बहुत बार नजरअंदाज कर जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे डॉक्टरों को और मरीजों को, मतलब जो नॉर्मल आदमी है, उसको पता रहना चाहिए ये संकेत हैं जो वो सुने, और अगर है तो आपके माध्यम से हीमेटोलॉजिस्ट से चर्चा करें। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन में सबसे कॉमन ब्लड कैंसर्स और डिसऑर्डर्स कौन से हैं? बहुत अच्छा। ब्लड कैंसर समूह है दोस्तों, इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी डिजीजेस। ब्लड कैंसर का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे 250 बीमारियां हैं जो ब्लड कैंसर में होती हैं। शरीर में लाल खून होता है, लाल खून के ज्यादा होना परेशानी, कम होना परेशानी, जिसे अपन लुकीमिया कहते हैं। तो अगर मैं मानूं कि सबसे कॉमन है, क्योंकि डॉक्टर विकास दुआ पीडियाट्रिक की बात करेंगे, अगर मैं 18 साल से ऊपर 90 साल तक की बात करूं, हाँ दोस्तों, अपन सब जितने भी श्रोता हैं जो इसको हेल्थ कनेक्ट को सुनते हैं, देखते हैं, वादा है आप सब 90 साल तक रहेंगे, क्योंकि इतना अच्छी चैनल पे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर आप उसको अपने जीवन यापन में रोज रोज यूज करें तो 90 साल तक जिएंगे। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? ल्यूकीमिया, जिसमें अनियंत्रित तरीके से लाल खून का बनना, मतलब लाल खून तेजी से बढ़ने लग गया, सफेद खून बढ़ने लग गया, वो मर नहीं रहा, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो गया, जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। दूसरा सबसे कॉमन है लिम्फोमा, जो गांठों की प्रॉब्लम है। लिम्फोमा जो शरीर में लिम्फ नोड होते हैं, पैरेलल चैनल होता है प्रोटीन्स को घुमाने का, उसमें सेल अगर नहीं मरते तो लिम्फोमा कहलाता है। तीसरा माइलोमा, माइलोमा बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तों। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है, जो अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बीमारी 60 साल में होती थी दोस्तों, वो अपने पास 50 साल में होती है, एक दशक यंगर होती है, और अपने को पहुंचना 90 साल तक है। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए समझना, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, CML, एप्लास्टिक एनीमिया में खून बनना बंद हो जाता है, लाल खून, पीला खून, सफेद खून बनना ही बंद हो गया। तो किसी की अगर देखिएगा, अपने रिपोर्ट में देखिएगा, अत्यधिक कमजोरी है, बुखार आ रहा है, शरीर पे नीले नीले धब्बे पड़ रहे हैं, तो आपका लाल खून, पीला खून और सफेद खून अगर कम हो गया तो वो एप्लास्टिक एनीमिया का लक्षण हो सकता है। तो ये कॉमन बीमारियां हैं, लिम्फोमा, माइलोमा। और दूसरी चीज मुखर्जी जी, डरना नहीं है। हेल्थ कनेक्ट का एक ही माध्यम है, एक ही पूरा सारांश एक ही चीज में है, डरना नहीं है। हम 2026 में हैं और बात करते करते 2029 तक पहुंच जाएंगे। इन बीमारियों में जो लोग 30% लोग ठीक हुआ करते थे 1980 में दोस्तों, आज 70-80% लोग बीमारी को हरा के अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, ऑफिस जा रहे हैं। तो इसलिए घबराइए मत। मैडम, हम हमेशा जीनोमिक्स के बारे में सुनते हैं, तो ये जीनोमिक्स क्या है? और इसके बारे में सबको ऐसे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और हेल्थ केयर में इसका इम्पोर्टेंस इतना क्यों बढ़ रही है? सो थैंक यू। ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि आज के दिन सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक नया स्पेशलिटी आ गया है, जीनोमिक्स, जेनेटिक्स। सब जीनोमिक्स और जेनेटिक्स को कंफ्यूज करते हैं। जेनेटिक्स है कि हम ढूंढते हैं कि एक कोई बीमारी हुई, जैसे मेरा भाई मेरे जैसा क्यों दिखता है, या मैं अपने मम्मी पापा के जैसे क्यों दिखती हूँ, सब हमारे जीन्स में है। सो अब जीनोमिक्स है कि हम कोई भी बीमारी क्यों हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे बिहेव करेगी, उसको क्या आप अलग से ट्रीट कर सकते हैं, हम उसको ढूंढते हैं। हम उस बीमारी को टेस्ट करते हैं, उससे DNA निकालते हैं, उसको
टेस्ट करके बताते हैं कि ये कहाँ से आया, इसका जन्म कहाँ हुआ। मैम ये जीनोमिक्स टेस्ट ये डायग्नोस्टिक्स को इतना एक्यूरेट कैसे बना रहा है? एक्यूरेट क्यों बना रहा है? क्योंकि आप और मैं सेल से बने हैं, हमारा दोनों का ग्राउंड ट्रुथ हमारा डीएनए है। डीएनए मतलब हमारे जीन्स। तो आपको आप बनाता है आपका डीएनए, मुझे मैं बनाता है मेरा डीएनए। हमारे आप में और मुझ में 99% सेम डीएनए है। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज ओनली 1%। आप और मैं सिर्फ 1% डिफरेंट है। आपको हम टेस्ट करेंगे, मुझे टेस्ट करेंगे, हमारा 99% सेम आएगा, ओनली 1% अलग आएगा। ठीक है, ये 1% की एक्यूरेसी है आप बता रहे हैं? करेक्ट। अब वो 1% एक्यूरेट है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कौन कैसा बॉर्न हुआ है, आपके मदर फादर से क्या आया आप में और आप में क्या होने की संभावना है। सर ये हम जानना चाहेंगे कि बच्चों में सबसे कॉमन ब्लड के डिजीज कौन से है, उसके लक्षण क्या है? देखिए, बच्चों में पहली बात है, कैंसर के पहले बात करें तो बच्चों में कैंसर कॉमन नहीं है। एक कैंसर हॉस्पिटल में अगर 100 मरीज इलाज कराते हैं तो उनमें से 95% अडल्ट होते हैं, सिर्फ 5% कैंसर है, 5% बच्चों में कैंसर होता है। बट अगर बच्चों में कैंसर होता है तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है, जिसके बारे में डॉक्टर भार्गव बात कर रहे थे, और उसका नाम होता है एक्यूट ल्यूकीमिया। मोस्ट कॉमन कैंसर काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी डॉक्टर जानते हैं मैं बोलूँगा, बट सेकेंड मोस्ट कॉमन डॉक्टरों को भी नहीं पता होता, और वो होता है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में गांठ हो गई, बच्चे को विजुअल डिस्टर्बेंस हो गया, बच्चों को दौरा आ गया, बच्चों को एक पार्ट ऑफ बॉडी का वीकनेस हो गया, तो ये चीज़ें ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। और इसके अलावा 10 और कैंसर है जो बच्चों में कॉमन है। तो टोटल 11-12 प्रकार के कैंसर होते हैं बच्चों में। बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, बट अगर किसी को होती है तो उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर होता है। और जो डिजीजेस है ब्लड के डिजीजेस, अगर हम डिजीज़ की बात करें, ब्लड की डिजीज़ तो सबसे कम हीमोग्लोबिन हो जाना। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया उसको एनीमिया बोलते हैं। बच्चों में हीमोग्लोबिन कम होने का मोस्ट कॉमन कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बच्चों में आयरन की कमी, या शाकाहारी या वेजिटेरियन आदमी में, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पर शाकाहारी लोग आपके वेस्ट बंगाल में कम है, बट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। तो उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाने पीने की कमी से एनीमिया हो जाना, ये मोस्ट कॉमन कारण है। अच्छा, तो किन लक्षणों को देखकर एक पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाएगा बच्चों को लेकर? हाँ, तो अगर एनीमिया किसी बच्चे को है तो वो बच्चा वीकनेस, फैटीग, टायर्डनेस, अपना स्कूल में इतना अटेंशन नहीं दे पा रहा, क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, चिड़चिड़ा रहना, अपना खेल कूद में अच्छा नहीं खेल पाना, और बार बार थकावट होके ज़्यादा टाइम सोने पे टाइम लगाना, ये एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके उसका डायग्नोसिस बन सकता है। अच्छा सर, अगर हम ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में इसमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या रहा? दोस्तों, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए हम ब्लड कैंसर को हरा सकते हैं। तो पहली बार सिंपल सी बात यह है, मैं एक ही स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा, ब्लड कैंसर इज नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस। घबराना नहीं है। हम 2026 का देश है जहाँ पे सरकार और दवाइयाँ मिलके हर कैंसर के लिए काम कर सकती हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुखर्जी जी, किस तरीके से इसमें हमारा दिल निकल जाता है, बाहर आ जाता है। हमने पिछले 20 साल का 2 दशक का सफ़र तय किया है ब्लड कैंसर की फील्ड में। अगर आप देखिए जेनेटिक्स, जैसे डॉक्टर श्रीनिधि ने कहा जेनेटिक्स, आज से पहले क्या होता था, मैंने बम लिया चला दिया, अच्छा भी मरा बुरा भी मरा, बाल भी गिर गए, बाल मेरे उसकी वजह से नहीं गिरे, बाल मेरे वैसे ही गिर गए। तो बाल गिर जाते थे, लोगों को लगता था अरे हमने पिक्चर देखी बॉलीवुड की और उसमें बॉलीवुड की और हॉलीवुड की पिक्चर देखी, हमने कहा बाल गिर जाएंगे, उल्टी होगी, दस्त होंगे, परेशान होंगे। आज भी हमारे को वही सदमा लगा हुआ है दोस्तों। 1990 में क्या हम एक दूसरे से अमेरिका में मोबाइल पे बात कर पाते थे? क्या मैं आपसे बैठ के कलकत्ता में बात कर पाता था मोबाइल पे? 2026 में हम बात कर सकते हैं ना, कहीं से कहीं भी बात कर सकते हैं। हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, मून पे जाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये बताओ ब्लड कैंसर का इलाज क्यों नहीं सुदृढ़ और सक्षम और सोफिस्टिकेटेड होगा? दोस्तों सोचो एक बार, आप एक बार सोचिएगा कि क्यों नहीं सुदृढ़ और सोफिस्टिकेटेड होगा दोस्तों। तो ब्लड कैंसर में पहले हम दवाइयां देते थे जो अच्छे बुरे सेल की परिभाषा नहीं जानती थी, उसको जेनेटिक्स से पता नहीं होता था कि कौन सी दवाई किसको चलानी है। कल को हम चारों को इस कमरे में एक ही टाइप का AML हो, सबको एक दवाई दे दी जाती थी। मतलब छोटा पैर हो बड़ा पैर हो, एक ही जूता पहनोगे। ऐसा आज की तारीख में नहीं होता।
तीन चीजें नहीं हुई दोस्तों। दवाई सुदृढ़ और सोफिस्टिकेटेड हो गई क्योंकि हमने उस कैंसर सेल को कपड़े उतार दिए, उसको समझ में आने लग गया, हमें समझ में आने लग गया इंसान को कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर सेल के ऊपर कौन सा एंटीना है, कैंसर सेल खाना कैसे खाता है, कैंसर सेल आपस में एक दूसरे सेल से कैसे बात करता है, वो जेनेटिक्स के माध्यम से हम समझ गए। तो हमने दवाइयां बनानी स्टार्ट करी। 1990 में टारगेटेड दवाइयों का उत्पतन हुआ जिसमें रिटुक्सीमैब दवाई आई। आपने सबने इराक की वॉर देखी होगी, स्कड मिसाइल देखी होगी, जो सिर्फ जाके पावर सेंटर पे मारती थी और आपका घर बच जाता था। देखी थी ना दोस्तों? अभी ईरान की वॉर भी देखी थी आपने कि किस प्रकार से टारगेटेड दवाइयों का मिश्रण आने लग गया। तो टारगेटेड दवाई आ गई, बाल गिरने बंद हो गए, उल्टी दस्त होने बंद हो गए। उसके बाद आई कि यह तो आईवी दे रहे हैं यार, ये तो अभी भी अस्पताल में जाने की जरूरत है, 90 साल का आदमी नहीं ले पाता। तो हमने दवाइयां कौन सी उत्पन्न करी? हमने इम्यूनोथेरेपी का नाम लाने लगे। अभी तक क्या होता था, हमारे को कैंसर हुआ, हमें पता नहीं होता था कि कब कैंसर हुआ। अब हमारे को समझ में आ गया कि हमारा चौकीदार जो टी सेल था उसने कैंसर से मुख मोड़ लिया, कैंसर सेल की तरफ उसने कैंसर सेल को देखना बंद कर दिया। तो एक कैंसर सेल चुपचाते हुए अंदर घुस के बड़ा हो गया। हमने इसी टी सेल को जागृत किया जिसे अपन इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। और आपने बहुत सुना होगा दोस्तों इम्यूनोथेरेपी के बारे में। लंग कैंसर में उसने कितना बड़ा काम किया, हॉजकिंस लिम्फोमा में 70% से 90% पे ले गए। 70% से 90% लोग ठीक होने लगे क्योंकि हमने टी सेल्स को जागृत कर दिया। हमने आपके टी सेल्स को बता दिया कि दोस्तों इसको जाके मारना है कैंसर सेल को। तो टी सेल को हम समझने लगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे को जब कैंसर सेल के बारे में पता चला, सीएमएल के बारे में पता चला, हमने ओरल दवाइयों का उत्पादन करने लगे। सीएमएल में इमैटिनिब की गोली 2000 में आई। आज 26 साल में दोस्तों 70% लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से एक ओरल गोली खा के अपना नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। कोई बाल नहीं गिरते, हाँ हड्डियों में थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है, बट ओरल गोलियों का चलन बढ़ने लगा। इसी के साथ यहां नहीं रुके क्योंकि हमारी जर्नी 100% तक पहुंचना है दोस्तों। जब आप अपना घर का कार्य कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब साइंटिस्ट पीछे से काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्हें आप ही के टी सेल्स को निकाला, उसको लैब में जागृत किया, जिसे कार टी सेल कहते हैं। 2010 में उसका उत्पादन अमेरिका में हुआ। आज हमारे पास वही शक्ति जिसे कार टी सेल कहते हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। वो आपके कैंसर सेल्स को मारने लगती है। तो देखिए कितना अच्छी चीजें हो गई। टारगेटेड दवाई हो गई, सुदृढ़ तरीके से ओरल दवाइयां आ गई, आईवी की जगह चमड़ी में लगाने वाली दवाई आ गई। तो इससे तीन चीजें क्या हुई, इससे मेरा सर्वाइवल बढ़ने लगा। मल्टीपल माइलोमा में जो आदमी 2 साल जीता था दोस्तों, आज वो 15 साल जी रहा है। सीएमएल में जो आदमी 5 साल में मर जाता था, आज वो 25 साल जीने की काबिलियत रखता है ओरल गोली खा के। आगे चल के बाइट थेरेपीज, जीन थेरेपी, और डॉक्टर श्रीधर जैसे कहा कि जीन हमारी पृष्ठभूमि है जो हमें बताता है दोस्तों कि कैंसर क्या है। मेरा कैंसर विकास के कैंसर से, विकास का कैंसर श्रीनिधि के कैंसर से, श्रीनिधि का कैंसर मुखर्जी के कैंसर से भिन्न है, डिफरेंट है। अब ये अपने को मानसिकता चेंज करनी है दोस्तों। इसीलिए आज हम यहां बैठे हैं और बोल रहे हैं कि आपको अपने जेनेटिक पत्री पे विश्वास करना है कैंसर के लिए। जेनेटिक पत्री के माध्यम से दोस्तों आपका इलाज होगा। इसको ए लगेगी, इसको बी लगेगी, इसको सी लगेगी, इसको डी लगेगी, पर सबको ए नहीं लगेगी। तो दोस्तों कैंसर का इलाज, जितना तेजी से कैंसर अपने को स्मार्ट समझता था, आज इंसान के सामने वो घुटने टेकता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत गुड न्यूज़ अब हम लोग के सामने ले आया। और ये जो एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट का, यही खासियत है। मैडम आपसे ये जानना चाहेंगे, सर इम्यूनोथेरेपी और कार्टिसल थेरेपी के बारे में इतना कुछ बताया, आप थोड़ा बता दीजिए। आपने जेनोमिक्स के बारे में भी बताया, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इसका भी बहुत बड़ा रोल होगा कैंसर ट्रीटमेंट में, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, या जिसको हम बोलते हैं प्रिसिशन मेडिसिन, राइट, उसका मतलब क्या होता है? जैसे प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ, वैसे अगर हमें पता है कि वो कैंसर के ऊपर कौन सा जीन है, आज हमारे पास दवाई है जो जाके उस जीन के ऊपर बैठती है और उसको मारती है। तो अब अगर सपोजिंग मैं आपको बोलूँ कि इस दरवाजे से अंदर आना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप अपने आप सोचोगे तो कीमोथेरेपी है कि आप ये दरवाजे को तोड़ के आ जाओगे, तो क्या होगा? दरवाज़ा भी टूट गया, दीवार भी डैमेज होगा, नॉर्मल चीज़ें भी डैमेज होगी।
वही चीज़ अगर आप चाबी ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. यू आर डूइंग व्हाट इज़ नीडेड, यू आर स्ट्राइकिंग द सेल्स व्हाट इज़ नीडेड. तो उसमें 5 राइट्स होता है, मैचिंग द राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट म्यूटेशन. तो इट इज़ अबाउट टेस्टिंग राइट टू ट्रीट राइट. तो सही पेशेंट के लिए सही ट्रीटमेंट चुनने के लिए जेनोमिक्स का भी तो रोल होगा ना. करेक्ट. सो अब अगर आप जेनोमिक्स टेस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सा जीन उस पर्टिकुलर कैंसर में है. तब हम बताएंगे कि ये जीन है, इस जीन की वजह से कैंसर हुई. तब ये वो दवाई उसमें इनिशिएट करेंगे जो उस जीन के ऊपर जाके बैठेगी. पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होगा, पेशेंट का आउटकम्स बेटर होगा. इसीलिए दोस्तों, जैसे डॉक्टर श्रीनिधि ने कहा, जीनोमिक टेस्टिंग, आज से पहले जीनोमिक टेस्टिंग के लिए 3 हफ्ते लगते थे. 3 हफ्ते तक हमें अपनी जेनेटिक पत्री को समझने में टाइम लगता था. तब तक कैंसर सेल तो नहीं रुकता था. ये बहुत दिनों से परेशान करती थी चीज में. इसीलिए फोर्टिस गुड़गांव में हमने देश का नहीं दोस्तों, विश्व का सबसे फास्टेस्ट जीनोमिक 3-डे जीनोमिक्स का उत्पादन किया कि अब इंतजार नहीं करना. कैंसर सेल को उसी समय उसकी पृष्ठभूमि खोलेंगे, उसका अंदर का चीज देखेंगे और प्रिसीजन मेडिसिन से उसको मार के मरीज को कम से कम टॉक्सिसिटी, कम से कम पैसा और जल्द से जल्द जहां वो बिलोंग करता है आर्थिक पहिए को चलाने में देश के मदद करेंगे. আপনারা যারা শুনছেন এতক্ষণ ধরে এই এপিসোডটি তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় স্যার ম্যাডামরা যেমন বলছেন যে আধুনিক চিকিৎসায় ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সারকে, বিশেষত রক্তের রোগ, বিভিন্ন রোগ এবং ব্লাড ক্যান্সারকে কীভাবে চিকিৎসকরা একেবারে নির্মূল করে দিতে পারছেন, সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিতে পারছেন. একজন ব্লাড ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর তার আয়ু একেবারে কতটা বাড়িয়ে দিতে পারছেন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায়, সেই কথাটাই এতক্ষণ ধরে বলছেন. আরও অনেক কিছু রয়েছে, আপনারা শুনতে থাকুন. বিकास सर, आपके पास आएंगे थोड़ा. ये ब्लड कैंसर के जब इलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये एडल्ट्स और बच्चों में क्या फ़र्क रहता है ट्रीटमेंट के पहले भी और ट्रीटमेंट में भी? देखिए, बच्चों के जो ब्लड कैंसर हमने बात करी उसमें एक जो सबसे कॉमन कैंसर है उसका नाम है एक्यूट लुकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया, एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया. आज के टाइम में 2026 में बच्चों के ब्लड कैंसर के आउटकम्स अभी भी बड़ों के ब्लड कैंसर के आउटकम से बेटर है. अच्छा. उसका बहुत कॉमन रीज़न, अच्छा. अनडाउटेबली बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा बेटर है. उसका रीज़न ये है कि बच्चों की कीमोथेरेपी टॉलरेट करने की क्षमता बेटर है. बच्चों की अडल्ट्स में आपको डायबिटीज़ मिलता है, आपको हाइपरटेंशन मिलता है, कोमॉर्बिडिटीज़ वर्ड यूज़ करते हैं, दिक्कतें मिलती है, क्रॉनिक डिजीज़ मिलते हैं. बच्चों में वो नहीं है. बच्चों का इम्यून सिस्टम फिर भी बेटर है. और आने वाले टाइम में और नई दवाइयाँ जो आ रही हैं उससे आउटकम बेहतर होते जा रहे हैं. जो डॉक्टर भार्गव ने अभी बात करी, CAR T सेल थेरेपी. एक वक्त था जब CAR T सेल थेरेपी कराने के लिए जिस आदमी के पास करोड़ों रुपए होता था वो अमेरिका जाता था इंडिया से. 2012 में अमेरिका में पहला सक्सेसफुल CAR T सेल थेरेपी हुआ. चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया, चॉप हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की का सक्सेसफुल CAR T सेल थेरेपी हुआ 2012 में. आज भी वो लड़की अपना हर साल जन्मदिन फेसबुक पे डालती है, यूट्यूब पे डालती है कि मैं 14 साल और जी गई. इंडिया में CAR T सेल आ चुका है. तो CAR T सेल इंडिया में आने की वजह से कॉस्ट कम हो गई. जो बच्चों को रिलैप्स हो जाता था, 10-15% बच्चों को रिलैप्स हो जाता था लुकीमिया में, ALL में, B-सेल ALL में, उनका इलाज बेटर होने लग गया और आउटकम बेटर हो गया. इस तरह से जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोला, टारगेटेड थेरेपी, बच्चों के और बड़ों के ब्लड कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे जैसे हमारे कैंसर सेल कुछ मार्कर्स एक्सप्रेस करते हैं. डॉक्टर श्रीनिधि ने बोला चाबी अगर आपने लगाया ताले में सही तो ताला खुल जाएगा. इस तरह से बच्चों को कैंसर में कोई स्पेसिफिक मार्कर्स आप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट आप टारगेटेड थेरेपीज़ देते हैं जिनका नाम ब्लिनसाइट है, आइनोटुजुमैब है. और उसके माध्यम से जिन बच्चों की बीमारी रिलैप्स हो जाती थी लुकीमिया, वो भी ठीक हो जाते. तो अप फ्रंट तो लुकीमिया का आउटकम अच्छा था ही था. अब रिलैप्स रिफ्रैक्टरी बच्चों में जो ब्लड कैंसर है वो भी लाइलाज नहीं रहे, वो बच्चे भी अब ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं. बहुत खूब. सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इसके बारे में बहुत चर्चा होता है, हर जगह पे होता है. ब्लड कैंसर की बात होता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात होता है इसके साथ. तो आप ये बताइए किन पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? अगेन बहुत अच्छा सवाल है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई सर्जरी नहीं है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिरी हथियार नहीं है दोस्तों.
बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक हथियार है जिसको सही समय पे चलाना होता है। अगर मान लीजिए अब हम 3 बैठे हैं, डॉक्टर श्रीनिधि ने मुझे बता दिया कि इसकी जेनेटिक्स हाई रिस्क है। आप मान लीजिए ALL में PH पॉजिटिव आ गया, मतलब हाई रिस्क आ गया, तो कॉमन आदमी को क्या पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी लो रिस्क है कि हाई रिस्क है। तो सोमवार को अपने डॉक्टर से जाके पूछेगा, डॉक्टर साहब मुझे बता दो कि मेरी बीमारी लो रिस्क या हाई रिस्क। लो रिस्क है, दवाई से ठीक होगी। हाई रिस्क है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक माध्यम है जिससे 70% लोग ठीक हो जाते हैं। कीमोथेरेपी से हर लोग ठीक नहीं होते। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट 2 प्रकार का, ऑटोलॉगस, एलोजेनिक। मल्टीपल माइलोमा में आज भी गरीब से गरीब आदमी भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के सरकार के माध्यम से 5 से 6 साल जी सकता है। और दोस्तों 5 से 6 साल तो एक ऐसा स्वर्णिम अवसर होता है कि 2029 का सूर्योदय देखेंगे तो जो दवाइयां आज महंगी दिखती हैं वो सस्ती होंगी। आपका इकोनॉमिक स्टेटस 5 साल में जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। हम सब डेवलप्ड कंट्री की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास जेब में पैसा ज्यादा होगा इलाज के लिए, और उस तब समय तक शायद हम 10% बीमारियों का क्योर ढूंढ पाए हैं, वो शायद हम 50% बीमारियों को क्योर ढूंढ पाए। तो ये मत सोचिए कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक आखिरी ऑप्शन है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सही समय पे करने से मुझे सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। तो मल्टीपल माइलोमा, हाई रिस्क एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, यंग पेशेंट, इन सब में बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट से क्या चीज पता होनी चाहिए कि अगर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट है, कि विकास और मैं भाई हैं, विकास मुझे 300 ml खून देता है तो विकास की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी 140 करोड़ के देश में दोस्तों लोगों को भय लगता है कि मैं अपना 300 ml खून दे दूंगा तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा। नहीं दोस्तों, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में 300 ml खून आपके भाई और बहन के लिए जीवनदायिनी हो सकता है, जीवन रक्षक हो सकता है दोस्तों। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सही समय पे एप्लास्टिक एनीमिया में, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में, रिलैप्स लिम्फोमा में, माइलोमा में हमें करना चाहिए ताकि हम 60 से 70% लोगों को ठीक कर पाएं। आज भी लोग शायद कहीं ना कहीं इस भय से बैठे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कोई सर्जरी होती है। दोस्तों मेरा फिर निवेदन रहेगा आपसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट खून बदलने की एक बहुत ही सरल पद्धति है। कॉमन आदमी को सिर्फ इतना ही पूछना है, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी जेनेटिक के बेसिस पे लो है या हाई है। ठीक। 2 ही चीजें हैं, लो है तो दवाई है, हाई है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक। तो सर इधर भी एक सवाल आता है बच्चों के लेके, जो बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ट्रांसप्लांट है एक बीमारी थैलेसीमिया। इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी में बच्चे को 6 महीने की उम्र से ब्लड चढ़ता है। तो थैलेसीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाता है। कुछ स्टेट्स में इंडिया में एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाता है। एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें लाल कोशिका, सफ़ेद कोशिका, पीली कोशिका बोन मैरो से नहीं बनती, उसके लिए ट्रांसप्लांट करा जाता है। बच्चों में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है, उनको कहते हैं प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें कुछ प्रकार की PIDs के लिए ट्रांसप्लांट करा जाता है। कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जिनका नाम है फैनकनीज एनीमिया, इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम, इनके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जाता है। और जो डॉक्टर भार्गव ने बोला कैंसर्स, ख़राब बच्चों में कैंसर्स, रिलैप्स्ड ल्यूकीमिया हो गया, रिलैप्स्ड AML हो गया, हाई रिस्क AML हो गया, रिलैप्स्ड लिम्फोमा हो गया, और कई प्रकार के सॉलिड ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा, ईविंग सार्कोमा में भी ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट के माध्यम से बच्चे ठीक हो जाते हैं। सर आपने थैलासीमिया के बाद कहा, तो ये थैलासीमिया जो है इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस अगर आ जाए तो इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा आपने बताइए। बहुत अच्छा सवाल बोला है, क्योंकि थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। पेरेंट्स के अंदर जीन होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, और 2 थैलेसीमिया जीन वाले लोगों का विवाह हो जाए उनको 25% संभावना होती है कि उनके घर में थैलेसीमिया मेजर का जन्म हो जाएगा। तो अगर आप एक टेस्ट करा लें, HPLC नामक टेस्ट करा लें शादी से पहले, नहीं तो कंसेप्शन से पहले, तो आप थैलेसीमिक बच्चे का बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही टेस्ट ही तो करना है। 500-600 रुपये का टेस्ट, और जीवन भर थैलेसीमिया बच्चा आपके जीवन में नहीं आएगा। देखिए मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, फोर्टिस हॉस्पिटल एक 7 स्टार हॉस्पिटल है। आप जब आएंगे आपको लगेगा कि एक डिफरेंट टाइप नेक्स्ट जनरेशन हॉस्पिटल में आ गए, बट फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर एक थैलेसीमिया बच्चे का इलाज मुफ्त हो सकता है। अच्छा। ये कैसे मुफ्त हो सकता है वो समझना है। सरकार
कोल इंडिया और एनजीओस के माध्यम से ये इलाज मुफ्त हो रहा है। कोल इंडिया के CSR फंड से 10 लाख रुपए की मदद, प्रधानमंत्री राहत कोष से मदद, एनजीओस इंटरनेशनल और नेशनल एनजीओस की मदद से और फोर्टिस में डिस्काउंट देने से ये इलाज 12 साल तक के बच्चे का जिसका फुल मैच डोनर घर में या घर के बाहर है, उसका इलाज ऑलमोस्ट निःशुल्क हो सकता है फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ थैलेसीमिया नहीं दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया जो सिर्फ गरीब लोगों को ज़्यादा पाया जाता है, उसमें भी भारत सरकार ने अपने माध्यम से, कोल इंडिया के माध्यम से, CSR के फंड से एप्लास्टिक एनीमिया भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री कर रखा है 18 साल तक के लिए। तो इसलिए ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी के बारे में अगर हम जानेंगे, सही डॉक्टर विकास दुआ तक पीडियाट्रिक में पहुंचेंगे, तो पैसे की आज देश में परेशानी नहीं है दोस्तों। सहना नहीं है, जानना है, जानते रहना है, सुनते रहना है, ताकि हम अपने और अपने लोगों को थैलेसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया को हराने में मदद करें। सर, जो बात हम कर रहे थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, तो आज के दिन में ये बच्चों में कितना सेफ है? बच्चों में जैसे हमने बात करी कैंसर का इलाज करने से आउटकम बेटर है, इसी तरह से बच्चों की बॉडी ट्रांसप्लांट को बेटर टॉलरेट करती है। जो हम स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी या रेडिएशन हम यूज़ करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, वो साइड इफ़ेक्ट बच्चों में कम लेकर आती है और 90% से अधिक बच्चे ट्रांसप्लांट को अच्छा झेल लेते हैं और सही हो जाते हैं। मैम, आपके पास जाएंगे, ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ये ट्रांसप्लांट के डिसीजन लेने में कितना मदद करती है, ये थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि अभी इन दोनों ने कहा, हाई रिस्क, अगर जेनेटिक हाई रिस्क है तो आज के दिन जितना इंटरनेशनल गाइडलाइन, नेशनल गाइडलाइन जो भी है, जितने भी हमारे बुक्स हैं, जितने भी हमारे पेपर्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें मोलेकुलर टेस्टिंग मैंडेटरी है, मतलब करना ही है, देयर इज़ नो ऑप्शन ना। अब वो ऑप्शनल नहीं है। तो अगर आपने किया, अगर आपका गुड रिस्क, बैड रिस्क और एक बीच का होता है, वो सब उस रिस्क के बेसिस में डिसाइड होता है कि ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं। तो जैसे उन्होंने बोला हाई रिस्क विच मीन्स बैड रिस्क, आपको उसमें ट्रांसप्लांट करना ही है, एनी डिजीज। ये जेनोमिक्स में क्या डिसाइड करते हैं, ये इसका इलाज हल्का होगा या भारी होगा पेशेंट्स का, ये क्या आप डिसाइड कर सकते हैं जेनोमिक्स के दौरान? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े साल पहले तक हम नहीं कर पाते थे क्योंकि जेनोमिक्स की रिपोर्ट 2 से 3 हफ्ते में आती थी। तो तब तक आपको कुछ ना कुछ ब्लाइंड, बिकॉज आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है ट्यूमर में, आपको पता ही नहीं है कहाँ से आया बीमारी, आपको पता ही नहीं उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, तो आप टारगेट ही नहीं कर सकते, प्रिसिशन स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो आपको ब्लाइंडली ट्रीटमेंट देना होता था। कुछ लोग ब्लाइंड ट्रीटमेंट, मतलब आपने ज़्यादा ट्रीटमेंट दे दिया तो टॉक्सिसिटी हो गई, साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब वो रिपोर्ट हमारे हॉस्पिटल में, फोर्टिस गुरुग्राम, 3 दिन में आती है। 3 दिन आप वेट कर सकते हो टू वेट कि कौन सा थेरेपी देना है, हल्का देना है, ज़्यादा देना है, डिपेंडिंग ऑन क्या जेनेटिक्स आया है आप उसको मैच कर सकते हो। यू कैन मैच द ड्रग टू द जेनेटिक टू द राइट पेशेंट, दैट इज़ व्हाट आई सेड, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि वाई वी वेंट इनटू कि फास्ट टेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड वी आर द ओनली सेंटर इन द एंटायर कंट्री एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ही सिंपल है, टेस्ट मोर ट्रीट लेस। एक फिलॉसफी एफएमआरआई गुड़गांव की है। जब पूरा देश में ट्रीट मोर की बात चल रही है, हम 2 फिलॉसफी पे काम करते हैं, प्रिवेंशन की और टेस्टिंग के माध्यम से कम सुदृढ़ इलाज की, जिससे पैसा खर्चा कम हो, आदमी की टॉक्सिसिटी, अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम होती जाए और वो अपना काम कर पाए। दोस्तों, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे दिल के पास है। क्यों? क्योंकि कैंसर पेशेंट जितना काम कर पाएगा वो उतना जल्दी ठीक हो पाएगा। कैंसर हमें रोक नहीं सकता, हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि हम कैंसर को हराने के लिए तत्पर हैं। राइट। और ये आप सर ये भी बता दीजिए कि ब्लड कैंसर को लेकर कौन सी मिसकंसेप्शंस आप दूर करना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल, एक ही मिसकंसेप्शन, ज़्यादा 2 मिसकंसेप्शन। पहला, ब्लड कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। नहीं दोस्तों, अपना हाथ हमें थामने दीजिए। देखिए 60 से 70% लोग आज भी ठीक हो रहे हैं, पर हम रुकेंगे नहीं। हम 100% तक हमारा जाने का एम है। इसीलिए हम तीनों लोग निकले हैं पूरे देश में यही बात करने के लिए, इस चैनल के माध्यम से, कि ब्लड कैंसर को हमने ठाना है, हमने हराना है।
पहली चीज। दूसरी चीज कि ब्लड कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है। नहीं दोस्तों, अब ये देश वो नहीं रहा जहां पे दवाइयां बहुत महंगी होती हो। सरकार निरंतर रूप से दवाइयों को कम पैसे में हर आदमी तक ले जाने के लिए सक्षमता ला रही है। आज की तारीख में हम देखें, आज की तारीख में सरकार पीपीपी मॉडल में मदद कर रही है लोगों की कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए। तो आप सोचिए, आज की तारीख में ब्लड कैंसर का इलाज महंगा नहीं रहा। जब आप अस्पताल से कम बाहर रहेंगे, अस्पताल में नहीं रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, इलाज घर पे करा पाएंगे, 80 साल तक घर पे इलाज करा पाएंगे, तो दोस्तों क्या इलाज महंगा होगा? सोच के देखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ब्लड कैंसर के इलाज में मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा, ज्यादा परेशान हो जाऊंगा, ज्यादा टॉक्सिसिटी होने लगेगी। हम दोस्तों 2026 में हैं, जहां पे दवाई सुदृढ़ है, सोफिस्टिकेटेड है, स्मार्ट है, सस्ती है, और ये इंश्योर करती है कि 90% दवाइयां हमारी, जैसे बॉटिजुमैब है, डाराटुमुमैब है, बाइट स्पेसिफिक है, कार टी सेल्स हैं, वो बाल नहीं गिराती। तो दोस्तों, सबसे बड़ा देश में नेशनल मूवमेंट क्या था कि मेरी बाल गिर जाते हैं कैंसर कीमोथेरेपी से। आज हम मुखर्जी जी 60 से 70, 80% कीमोथेरेपी घर पे दे पाते हैं, बिना बाल गिराए दे पाते हैं, और लोगों को फ्राइडे को लगा के मंडे को ऑफिस भेज पाते हैं। क्या बात है। विकास सर, आपके पास आएंगे। ये चाइल्डहुड ब्लड डिसऑर्डर्स और ट्रांसप्लांटेशन को लेकर पेरेंट्स को सबसे ज़रूरी बात जो है वो क्या जानना चाहिए? जो सेम बात जैसे डॉक्टर भार्गव ने बोली, डरना नहीं है। अगर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड हैं तो डॉक्टर से समझे, सही डॉक्टर से समझे जो इस चीज़ का इलाज करता है। बच्चों की प्रॉब्लम है तो बच्चों के हेमेटोलॉजिस्ट इस देश में हैं, बड़ों की प्रॉब्लम है बड़ों के हेमेटोलॉजिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर स्पेशलिस्ट हैं। तो सही डॉक्टर से मिलें, समझें कि क्या ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है। अगर इंडिकेटेड है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराएं ताकि टाइम ना निकले और आपका आउटकम अच्छा आ सके। एग्जैक्टली सर। मैं ना आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या फ्यूचर में जेनोमिक टेस्टिंग रूटीन हेल्थ केयर का एक हिस्सा बनने चले? ऑफ कोर्स, यही तो हमारा सपना है कि जीनोमिक टेस्टिंग शुड बी लाइक टेस्टिंग सीबीसी। मतलब एवरी ह्यूमन, हर एक इंसान जो एक इस प्लैनेट पे चल रहा है, उसका एक होल जीनोम टेस्टिंग होना चाहिए। क्यों? ताकि उसे पता हो कि उसका बॉडी का मेकअप क्या है, उसको क्या खाना चाहिए, उसको क्या दवाई सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, उसे क्या क्या बीमारी होने की रिस्क है, सब कुछ उस होल जीनोम से पता चलता है। जैसे आप बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म पत्री बनवाते हो, तो अब जीनोम पत्री सबका मैंडेटरी हो जाएगा। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि थैलासीमिया को लेकर जब इतना चर्चा होता है तो फिर भी अवेयरनेस की कई कई में जो खामती है वो दिखाई देने लगते हैं। तो सर, ये थैलासीमिया के ट्रीटमेंट में क्या होने वाला है और हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आज के टाइम में हिंदुस्तान में थैलेसेमिक बच्चा ब्लड चढ़ाता है, आयरन बढ़ने की वजह से उनकी लिवर में, उनके हार्ट में आयरन इकट्ठा होता है, उनको लाइफ को डेंजर होता है, तो आयरन कम करने की दवाई खाता है। और एकमात्र जो उपाय इंडिया में अवेलेबल है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। चाहे वो फुल मैच ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हाफ मैच ट्रांसप्लांट हो, सबके आउटकम्स बहुत बेहतर हो गए, क्योंकि आज हम समझ चुके हैं कि कौन सी दवाई उसके ट्रांसप्लांट में यूज़ करनी चाहिए ताकि 90% से अधिक आउटकम मिल सके। इंडिया के बाहर अमेरिका में जीन थेरेपी की ट्रायल्स चली, वहाँ से कुछ जीन थेरेपी अप्रूव भी हुई, जो अभी इंडिया में नहीं है। होने वाले 10 साल में, 12 साल में हो सकता है जीन थेरेपी भी आ जाए और वो भी एक हथियार हम यूज़ कर सकें थैलेसीमिया के इलाज के लिए। बट आज हम जब 2026 में आज आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि जितनी जल्दी अपने बच्चे का इलाज ट्रांसप्लांट के माध्यम से कराएं, वो बच्चा ठीक हो सकता है। और हम 3 लोग जो फोर्टिस गुड़गांव से, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव से आए हुए हैं, हमने जैकी श्रॉफ जी के साथ और काफ़ी NGOs के साथ मिलके एक बात ठानी हुई है कि हमारी कोशिश है कि 2035 तक हम थैलेसीमिया को एलिमिनेट ही कर दें, सो दैट वी विल नॉट हैव अ बर्थ ऑफ अ थैलेसेमिक इन 2036। राइट। और सर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, आप बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली। फोर्टिस गुड़गांव में, जहाँ पर हम 6 अडल्ट हेमेटोलॉजिस्ट, 6 पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ID स्पेशलिस्ट, मॉलिक्यूलर स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट और एक 35 बेडेड ट्रांसप्लांट यूनिट अब जो हमारे पास आ गया है, इन सब के वजह से आउटकम्स हम बेहतरीन दे पा रहे हैं।
जो लोग बाहर जाने के लिए सोच रहे थे वो एब्सोल्युटली भी आज अब इंडिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले लोगों की परिभाषा होती थी, बेस्ट की परिभाषा क्या होती थी, गांव वाले की परिभाषा होती थी कि मैं शहर जाके इलाज कराऊं, शहर वाले की परिभाषा होती थी कि मैं यूएस जाके इलाज कराऊं। तो अब जो है यूएस यूके जाने की आवश्यकता नहीं है। फोर्टिस गुड़गांव जैसे हॉस्पिटल में सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। परिवार को, ब्लड कैंसर के जो मरीज है, पेशेंट्स है, उसके परिवार को एक लाइन मैसेज देना चाहेंगे तो वो मैसेज क्या होगा? बहुत ही सिंपल मैसेज है दोस्तों, घबराना नहीं है। हम सब आपके साथ बैठे हैं। भले ही हमारे में और आप में 1000 किलोमीटर का डिफरेंस हो, बट हम बहुत बार आपसे बोलते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, सिर्फ हम 1 सेकंड अवे हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जानना ज़रूरी है। और जब तक हम लोग आपके साथ बैठे हैं, बिल्कुल भी ब्लड कैंसर से ना डरें। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई पद्धति आप पे ज़रूर कारगर होगी, ऐसा हमारा पक्का विश्वास है। हमने एफएमआरआई में ठाना है इस बार ब्लड कैंसर को हराना है। देखिए, बच्चों में जिनके परिवार में बच्चों को कैंसर हो चुका है या वो किसी को जानते हैं जिनको कैंसर है, तो एक ही चीज़ समझनी है, 2026 में इलाज इतना अच्छा है कि आउटकम 90% से ज़्यादा हो चुके हैं। चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे वो लिम्फोमा हो, चाहे वो सॉलिड ट्यूमर्स हो, आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आप सही जगह जल्दी इलाज कराएं और बच्चा ठीक हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि हर ब्लड कैंसर सेम नहीं है, उसके लिए एवरी ब्लड कैंसर का जीनोमिक्स अलग है। प्लीज़ आस्क फॉर जीनोमिक टेस्टिंग, आस्क फॉर रैपिड जीनोमिक टेस्टिंग टू ट्रीट प्रिसाइजली, डोंट ट्रीट ब्लाइंडली। দর্শক বন্ধু, আজকের আলোচনায় আমরা দেখলাম যে রক্তের ক্যান্সার এবং রক্তের অন্যান্য রোগগুলোকে কত সহজে, কত আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা একেবারে প্রায় নির্মূল করে দিতে পারি। কাজেই একটা সময় ছিল যখন ব্লাড ক্যান্সার হয়েছে এই কথাটা যখন বাড়িতে শোনা যেত, তখন কিন্তু একটা শোকের ছায়া নেমে আসতো। হয়তো সেই মানুষটিকে আর বাঁচানো যাবে না, সেটা কোনো অ্যাডাল্ট হোক, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হোক, কিংবা কোনো শিশুদের ক্ষেত্রে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের এই আলোচনা যারা শুনেছেন হেলথ ইম্প্যাক্ট বাংলায়, তারা এটুকু বুঝতে পেরেছেন ফর্টিস গুড়গাঁও থেকে ডাক্তারবাবুরা এসেছেন এত দূরে আপনাদের জন্য, আপনাদের কিছু সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে। আপনারা যারা শুনলেন তারা এটুকু বুঝতে পারলেন যে যদি রক্তের ক্যান্সার হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু ভয় পাবেন না। কারণ আজকের দিনে যেই চিকিৎসাটা বিদেশে সম্পন্ন হতো, যেই চিকিৎসা করার জন্য বিদেশে যাওয়া হতো, সেই চিকিৎসা কিন্তু আজ ভারতেই হচ্ছে। ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করুন, ব্লাড ক্যান্সার নিয়ে চিন্তা করবেন না, থ্যালাসেমিয়া নিয়ে চিন্তা করবেন না, সচেতন থাকুন, শুধু সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসকের কাছে গিয়ে সঠিক চিকিৎসাটা করান, তাহলে কিন্তু সুস্থ জীবন আপনিও লাভ করতে পারেন বা আপনার পরিবারের প্রিয় মানুষটিও লাভ করতে পারে। আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করবো, আর দীর্ঘায়িত করবো না। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে লিখুন, মতামত জানান। আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে পরবর্তী কোনো পর্বে আবার আলোচনা হবে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।